can proceed. Good morning to one and all present here. Myself Janvi Rajani. The topic of my presentation is the rasas. So next slide. What is ras? रसाः स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का षड्द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावः. Ras is nothing but the taste which is being perceived by the tongue. In Ayurveda, 6 tastes have been described. Madhur ras, that is sweet, amla ras, sour, lavan ras, salty, tikta ras, bitter, ushna or katu ras, pungent, kashay ras, astringent taste. These rasas gives better nourishment to the body in their preceding order. मतलब कि मधुर रस सबसे ज्यादा नरिशमेंट देगा और कषाय रस सबसे कम. Today we are only going to talk about first 3 rasas, that is madhur, amla and lavan. Relationship of ras and Panch Mahabhut. Madhur ras contains Prithvi and Jal Mahabhut. Amla ras includes Prithvi and Agni Mahabhut, and Lavan ras consists of Jal and Agni Mahabhut. Now, influence of ras over dosha. Madhur ras is Vat, Pitt, Har and Kaf Vardhak. That means मधुर रस वात और पित्त को कम करेगा और कफ को बढ़ाएगा. अम्ल रस इज वात हर एंड पित्त कफ वर्धक. मतलब कि अम्ल रस वात को कम करेगा और पित्त और कफ को बढ़ाएगा. और लवण रस इज ऑल्सो वात हर एंड पित्त कफ वर्धक, विच मीन्स लवण रस वात को कम करेगा और अगेन पित्त और कफ को बढ़ाएगा. General properties of ras. The substance having madhur ras are snigdha, sheet, guru and increased cough. Then amla ras dravyas are snigdha, ushna and heavy and increased pitta. Lavan ras dravyas are also snigdha, ushna and guru and are unwholesome for eyes. लवण रस वाले द्रव्य हमारी आईज के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि जब ज्यादा सॉल्ट जाएगा बॉडी में तो ज्यादा सोडियम जाएगा और सोडियम बॉडी में पानी रिटेन करता है, तो वो जो एक्सेस वाटर है वो आईज के नीचे की स्किन में रिटेन होगा और वहां पे पफीनेस आ जाएगी. सर नेक्स्ट स्लाइड. Many of the therapeutic actions of Ayurvedic medicines are explained by the taste of the medicine. For example, गुड़ुची acts as anti-fever herb because of its bitter taste. गुड़ुची हम एज एन एंटी फीवर लेते हैं क्योंकि उसका टेस्ट बिटर है. तो आयुर्वेद में टेस्ट सिर्फ एक फीचर नहीं है, पर वो एक टूल है फार्माकोलॉजी समझने का. सो नेक्स्ट स्लाइड. अनुरस. Anurus means sub-taste. When such a taste is not distinctly perceived but is inferred only by its actions, it is known as anurus. मतलब कि जो टेस्ट हम परसीव नहीं करते पर हमें उसके एक्शन से पता चलता है कि वो रस प्रेजेंट है. एग्जाम्पल, हनी हैज एस्ट्रिंजेंट सब टेस्ट एंड वो कफ दोष को कम करता है. नेक्स्ट स्लाइड. Order of taste consumption. Even today, the order of serving the food in Indian custom and also in other auspicious functions all over the nation is as indicated in Ayurveda. Ayurveda recommends taking madhur, amla, lavan, katu, tikta and kashay ras foods in this same order while having food. जैसे हम इंडियन कस्टम में सबसे पहले मीठा खाते हैं, फिर बाकी सारे रस जैसे कि अम्ला, लवण, तिक्त और कटु ये सब खाने में आ जाते हैं और लास्ट में हम बटर मिल्क या मुखवास लेते हैं जिसमें कषाय रस होता है. इसका रीजन ये है कि जब हमें भूख लगती है और हम खाना खाना शुरू करते हैं तब हमारी डाइजेशन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है. मधुर, अम्ल और लवण हैवी होते हैं नेचर में, तो अगर वो हम पहले लें तो हमारी डाइजेशन स्ट्रेंथ अच्छे से यूटिलाइज होगी इनको डाइजेस्ट करने में. कटु, तिक्त और कषाय द्रव्य लाइट होते हैं तो उनको थोड़ी कम स्ट्रेंथ चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए, इसलिए हम उनको बाद में लेते हैं. Now, importance of taste in health and disease. Health of the person is mainly dependent upon ras because eating foods with only one taste will cause all the disease, whereas incorporating foods with all the 6 tastes leads to good health. हमें कभी भी एक रस नहीं लेना चाहिए, हमें हमारे मील में सारे ही रस लेने चाहिए, इससे हेल्थ अच्छी रहती है.
That was all about general information of Ras. Further, Neeraj will explain you about Madhur Ras. Thank you. Before Neeraj starts, that was a very good presentation, जानवी. इसमें तीन चीज़ें अच्छी तरह से हाईलाइट की गई हैं. एक मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ फूड, भारत में जो भी खाना पकाया जाता है उसको पाक शास्त्र बोलते हैं. पाक शास्त्र, पाक शास्त्र इज तंत्र और स्टडी ऑफ फूड आइटम्स. तो जैसे मधुर रस का जो सेवन किया जाता है वो शुरुआत में किया जाता है, और ये भी सही है कि पहले 3 रस गुरु होने की वजह से हमारे अग्नि को ज़्यादा मतलब अग्नि बलवर्धक, अग्नि ज़्यादा होती है तो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं. और दैट इज व्हाट, इफ यू गो इनटू फॉरेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट दे डू इज डेजर्ट्स. डेजर्ट्स मतलब खाने के बाद मीठा खाते हैं. तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग. मधुर रस जो है वो सबसे पहले खाना चाहिए. और उसके बाद आम्ल रस. आम्ल रस में ज़्यादा करके पापड़ या अचार आते हैं. लवण रस में भी पापड़ आते हैं, और बाकी जो खाना है उसमें लवण होता ही है. साथ ही में जो मुखवास वगैरह का ये हुआ, मुखवास नॉट ओनली इज कषाय रसात्मक मुखवास, अच्छी तरह से मतलब अच्छे सौंफ वगैरह का मुखवास लिया गया तो वो वातानुलोमक भी होता है, तो इसलिए पेरिस्टाल्सिस भी बढ़ाता है. और लवण रस सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, बालों के लिए भी खराब होता है. तो जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं और जिनको बाल ठीक से नहीं आते, उनको अगर लवण रस का हम मतलब प्रोहिबिशन करें, लवण रस कम लेने को बोले, तो उनमें भी बहुत अच्छा फ़र्क दिखाई देता है. सो दिस इज समथिंग विच लवण रस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर. लवण रस आँखों के लिए अच्छा नहीं है. इसका एक कारण तो सोडियम वोडियम तो है ही. लवण रस जो है वो अग्नि और जल महाभूत प्रधान है. तो अग्नि और जल, अग्नि को भी बढ़ा मतलब पित्त को भी बढ़ाता है और कफ को भी बढ़ाता है. और आँख जो है ये अग्नि महाभूत प्रधान या तेज महाभूत प्रधान ऑर्गन है, और इसीलिए इसको ज़्यादा अग्नि भी सूट नहीं करता और ज़्यादा जल भी सूट नहीं करता. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि लवण रस का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, स्पेसिफिकली आँख के डिसीजेस में, जैसे रेटिनाइटिस और ये सब. रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा या रेटिनल डिटैचमेंट या जो भी आँख के सीवियर रोग हैं, इनमें एक चीज़ ये भी है कि लवण रस ज़्यादा शरीर में जाने से वाटर रिटेंशन होता है, तो वहाँ की जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, वो फूल जाती हैं. फूल जाने की वजह से वहाँ पर पैथोलॉजी निर्माण हो जाती है. तो वो भी एक कारण है. इट इज़ नॉट ओनली द पफिनेस ऑफ फेस, बिकॉज पफिनेस ऑफ फेस इज और पफिनेस बिलो द आईज इज अ एक्सटर्नल एस्पेक्ट, बट इंटरनली भी लवण रस उतना ही काम करता है जितना एक्सटर्नली काम करता है. सो नीरज कैन कंटिन्यू. हेलो, माई सेल्फ नीरज राजपुरा. आज मैं आपको मधुर रस के बारे में बताऊंगा. नेक्स्ट. मधुर रस तेषा विद्याधर स्वादु यो वक्तर मनु लिम्पति आस्वाद्य मानो देहस्य हृदयोनो क्षय प्रसादन प्रिय पिपीलिकादिना. इसका मतलब ये होता है कि अमंग द सिक्स प्रसाद स्वीट इज दैट विच स्टिक टू द माउथ व्हेन इट इज टेस्ट, which gives a pleasant feeling and gives placidity and serenity to sensory organ, and which is very much liked by ants and others. इसका मतलब ये होता है कि मधुर रस वो है जो मुख को चारों ओर से लिप देता है, और उसका स्वाद मिलते ही संपूर्ण शरीर का अधिष्ठान मन प्रसन्न होता है और इंद्रिय को भी प्रसन्न हो जाता है. और ये रस चीटिया और अदर्स को એટલે કે अन्य को प्रिय होता है. नेक्स्ट. एक्शन ऑफ स्वीट टेस्ट. मधुर रस आ जन्म सातम्य कृते धातुना प्रबल बलम बाल वृद्ध क्षय क्षीण वर्ण केशेंद्रिय ओजसा. इसका मतलब ये होता है कि द स्वीट टेस्ट इज wholesome as it habituated since birth at best of great strength to the bodily elements એટલે કે ધાતુ. It is very benefit to the children, old and injured, and debilitated, and also for
color complexion, hair, sensory organ and ojas. इसका मतलब ये होता है कि मधुर रस है वो धातु के रूप में जन्म काल से सातम्य होता है। इसके कारण आदि धातु को बलदायक बनाता है और ये बालक, वृद्ध, शत, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रियों तथा ओजस के लिए हितकारक होता है। नेक्स्ट, अब मधुर रस के ग्रुप: द्रुत, हेम, अक्षुर, गुडाग, मोज, चोच, परुक्षम, अभिरु, वीरा, पनस, राजदान, बलात्रयम, मेदे, चतस्त्र, पर्णियों, जीवंती, जीवकर्ष योगो, मधुक, मधुक, बिंबी, बिदारी, श्रावणी युगम, क्षीर, शुक्ला, सुगाक्षीरी, क्षीणिग्नो, काश्मीरी सहे, क्षीरे, शुगो, क्षुर, चौद्र, द्रक्षा, आदि मधुर गण। इसका मतलब ये होता है कि the following substances are present in the group of sweet substances having sweet taste dominant. There are Greed, gold, good, Akshod, Moth, Choth, Parushka, Abiru, Veera, Panas, Rajdana, and 3 varieties of bal, 2 varieties of made or varnish, and मासपर्णी, जीवंत, जीवक, रसपक, मधुर, मधुक, बिंबी, बितारी, श्रावणी, और श्रावणी में 2 श्रावणी और महाश्रावणी, क्षीर शुल्क and 2 type of क्षीरिणी, क्षीराक्षपली और दुग्धधिक, और काश्मीरी and 2 सहस और महासहस और शुद्रासहस, मिल्क, शुगर कैन, गोक्षुरु, हनी और ग्रेप्स and others. By saving and others date and એટલે કે ખજૂર and દાડીમ and many others are to be understood. Likewise, group of other are also to be know. इसका मतलब ये होता है कि दूध, सोना, गुड़, अखरोट, केला, चोच, परुष्क, अभीरू, काकोली, कटहल, चिरोजी, बलात्रय, 2 मेदा, 4 पर्णी, जीवंती, जीवक, रुष्पक, महुआ, मुलेठी, बिंबी, बिदारी, कर्ण, श्रावणी युगम, क्षीरशुल्का, वंशलोचन, 2 क्षीरिणी, छोटी और बड़ी, गंभार और 2 सहा और मासा, दूध, तीक्ष, बोखरू, मधु, मनुका आदि ये सब मधुर रस के द्रव्य है। इसमें मधुर रस होता है। और नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ मधुर रस: मधुर श्लेष्मस प्रायो जीर्णाच्छ लियवाद्यते, मुद्गाद गोधूमत श्रोत्रातिसाद या जंगल अभिशातः. In general, substances which are sweet are predominant taste cause increase of cough, but including the old shali and old yav and green gram, wheat, honey, sugar and meat of animals of jungle. इसका मतलब ये होता है कि सभी मधुर रस वाले कफ कारक होते हैं, पर लेकिन शाली धान्य, जौ, मूंग, गेहूं, मधु और सफेद मिश्रित तथा जंगल देश के प्राणी के मांस को छोड़कर सभी कफ कारक होते हैं। Okay, so very good way of presenting, but what I would like to tell you is जब भी आप श्लोक लिखोगे तो ज़्यादा करके उसको ना फोड़ के लिखना। फोड़ के लिखेंगे तो फ़ायदा क्या होता है कि जब आप बोलोगे तो यू कैन, जैसे ये क्षीरे क्षुगे क्षीरेक्षु गोक्षुरक शौद्र द्राक्षा दाडिम मधुरो गणा, ऐसे है। तो फोड़ के लिखेंगे तो एक एक वर्ड आप बोल सकोगे। दूसरा यह है कि श्लोक लिखना जरूरी नहीं है इसमें, मतलब एटलीस्ट सेमिनार में। अगर आपने थियोरी में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेमिनार में श्लोक लिखना जरूरी नहीं है। तीसरा एक पॉइंट ध्यान में रखने जैसा ये है कि व्हेन यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, ऑलवेज सी टू इट दैट जो भी टेक्स्ट में लिखा है उसको आप बोलो या नहीं बोलो, लेकिन जो एक्चुअल इसमें पाया जाता है, मतलब आज की तारीख में जो भी द्रव्य मिलते हैं या आज की तारीख में जो भी द्रव्यों के नाम हैं,
तो उनको मतलब द ऑडियंस शुड बी सेटिस्फाइड विथ योर एग्जांपल। तो इसीलिए मोर अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स वुड बी स्वीट फल, सीता मतलब शक्कर, शौद्र मतलब मधु। तो ये जो भी उसी में से एग्जांपल्स लेने हैं, लेकिन जो रेगुलर यूज में हम करते हैं वो एग्जांपल्स अगर आप लोगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों को समझ में आएंगे। Seminar is not about writing the shloka and explaining it. Seminar is taking the principle and explaining it to the people according to the latest lifestyle which they follow. So the presentation was good, but this is something which you have to फर्स्ट ईयर में तुमको चिकित्सा का कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, मुद्ग पढ़नी, महाश्रावणी, क्षीर का कोली, दुग्धिका, इसका मतलब मधुर रस, ये ज्यादा फोकस्ड शुड बी देयर ऑन द फूड वी ईट रादर देन द मेडिसिन्स वी आर मतलब हैविंग। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट अशिति। Hello friends, my name is Asiti Ratwa and my topic is Amla Ras. So next slide. Amla Ras. तो के Amla Ras means sour taste. Amla Ras कैसा होता है? तो खट्टा होता है. It exhibited a sharp taste. उसका स्वाद खट्टा होता है. It pacifies स्वाद but increase पित्त and cough. यह वात को शांत करता है और लेकिन पित्त और कफ को बढ़ाता है. इसमें पृथ्वी प्लस अग्नि एलिमेंट्स प्रीडोमिनेंट है. क्वालिटीज क्या है? तो लाइटनेस, हॉट एंड अनक्यूटेनियस. किस सीजन में होता है? तो कि वर्षा ऋतु में होता है. सो नेक्स्ट स्लाइड. अम्ल रस के लक्षण. अम्ल क्षालयति मुखम, हर्षणो रोम दंता नामक्षी भुवनिकोचनम. इस श्लोक में कहा गया है कि अम्ल रस को जब हम मुख में रखते हैं तो उसका स्वाद खट्टा होता है और सलाइवेशन होता है. एग्जिस्ट कंजप्शन ऑफ शॉर्ट फूड कोज. जब हम इस रस को अम्ल रस के पदार्थों को मुख में रखते हैं तो टीथ दांतों में झंझनाहट होती है और जो पर्सन है उसकी आईज और आईब्रो टाइट होती है. अम्ल रस के कर्म. इस श्लोक में कहा गया है कि अम्ल रस के जो ड्रग्स हैं वो स्टिमुलेट द पावर ऑफ डाइजेशन. उसका वीर्य है हीटिंग, विपाक है शौर, गुण है स्निग्ध, उष्ण एंड गुरु. और अम्ल रस आर इंक्रीज कफ, पित्त एंड रक्त एंड कोज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्यूमुलेट वात. Complication due to excessive use for sour substance. अम्ल रस को अधिक मात्रा में लेने से क्या होता है? तो क्या इट प्रोड्यूस द लूजनेस ऑफ द बॉडी में लूजनेस उत्पन्न करता है एंड ऑल्सो कोजेस ब्लाइंडनेस, ग्लिडीनेस, इचिंग, एनीमिया, हर्ब्स, ओडिमा, बॉइल्स, थर्स्ट, फीवर, etc. ये सब रोग होते हैं अम्ल रस को ज्यादा लेने से. अम्ल रस कौन कौन से फल अम्ल रस में आते हैं? तो कि आमलकी है, आमड़े है, दधी है, कच्चे आम है, ये सब अम्ल रस में आते हैं.
इसमें और भी है बहुत सारे जो हम रेगुलर यूज करते हैं। दाडिम, उसके बाद हाँ सर, शक्कर डैडिम। छाछ, उसके बाद चुक्र, उसके बाद गुआवा मतलब पेरू, उसके बाद आम्र कच्चा जो आपने बता दिया, आमली का मतलब इमली, इमली। करमर्दक मतलब जो एक धार धार वाला फल आता है, स्कूल के आसपास मिलता है, 5 रुपए में 2, वो भी खट्टा होता है। ऐसे इलोंगेटेड फल होता है जो ऐसे धार, 4 धार होती है उसको, वो करमर्दक। आम्लवेतस, आम्लवेतस के पत्ते आते हैं, वो मातुलुंग भी फल आता है जो अभी मिलता है। तो दीज आर ऑल आम्लगण। आम्लगण को आम्ल स्कंद भी बोलते हैं, आम्ल स्कंद, ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं स्कंद, स्कंद मतलब गण। ओके, नेक्स्ट। Good morning, everyone. Myself, Hiral Rawat. Today, I'm going to discuss about the Lavan Ras. So, Lavan Ras, it is one of the our sixth skand. Lavan means salty taste. It primarily gives relish to the food, which means it gives a savor to the food, which make or create interest towards the food. Salty taste is due to the predominance of the Jal Mahabhut and Tej Mahabhut. Salty taste specifies Vat, means Lavan Ras mitigates the Vat but increases the Pitta and Kapha. Now the Lakshan of the Lavan Ras. First one is the Atishand, which means excessive salivation. Second one is the Kapol, Galadaha Krut, which makes a burning sensation in the throats and the checks. And the third one is causes deliciousness of food. Now the Karma of the Lavan Ras. It removes the stiffness in the body parts, relieves the obstruction of the internal channels, increase the perception of the taste, and digest the undigested food material. So, now the complications due to the excessive use, it aggravates the Rakh and the Vat. As we seen in the previous slide, uh, Jal Mahabhut and Tej Mahabhut are predominant in the Lavan Ras. That's why it aggravates the Rakh and the Vat. It causes baldness, graying of hair, wrinkling on the skin, rust, skin diseases, increase the ulcers, effect of poison and intoxication, and decrease the strength and the ojas. So now the Lavan Gan, the types of the Lavan, the Sandhav Lavan, Savarchal Lavan, Krishna Lavan, Bid Lavan, Samudra Lavan, Sampujan Lavan, Pamsud Lavan, sorry, Sheesh, that's lead, Kshar, Kshar and Yavakshar. So completed. And thank you in a bunch to listen us. Okay, so thank you all of you for listening and thank you for those who presented. ये जब भी आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द लिंक फॉर अटेंडेंस। आप लोग अटेंडेंस डाल के आइए, तब तक मैं जो बड़बड़ करता हूँ वो सुन लीजिए। ये आपकी अटेंडेंस की लिंक है। Okay, so coming back to our presentations, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? एग्जाम में आइदर स्मॉल टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे लवण रस के कर्म, या लवण स्कंद, या फिर आम्ल स्कंद, मधुर स्कंद, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर मधुर रस, ऐसा लॉन्ग आंसर, मधुर रस के कार्य, लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। अगर लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा तो व्हाट यू हैव टू राइट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द रस, रस का इंग्लिश मीनिंग, उसके बाद रस के लक्षण कि शरीर में लेने से तुरंत क्या लक्षण दिखते हैं। जैसे मधुर रस आस्वादन है, या शरीर को अच्छा बनाता है, या इंद्रियों के बल बढ़ाता है, या आस्वादन करता है, या लवण रस जो है वो लवण रस कपोल गलत दाहकृत है, या फिर लवण रस से स्यंदन होता है, एक्सेस सलाइवेशन होता है। तो ये जो लक्षण है ये तुरंत दिखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको उस रस के शरीर में दीर्घकाल सेवन करने पर भी लक्षण जो दिखते हैं, जैसे
लवण रस ज़्यादा सेवन करने से बाइल्डनेस आ जाता है या रक्तज व्याधियाँ हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करना है कर्म में। उसके बाद उसका प्रभाव, प्रभाव मतलब अति मात्रा में अगर आप सेवन करोगे तो क्या होगा। अति मात्रा में जैसे मधुर रस सेवन करोगे तो वजन बढ़ जाएगा, लवण रस सेवन करोगे तो बाल झड़ जाएंगे, आम्ल रस सेवन करोगे तो कर्म में मैं एक चीज़ भूल गया, कर्म में अगर आम्ल रस है तो जैसे हृदय है, हृदय के लिए हितकर है, तो वो सब चीज़ें भी आपको लिखनी है। साथ ही साथ मतलब रस के अधिक सेवन से होने वाले रोग जो हैं वो भी आपको लिखने हैं। रस का और दोष का संबंध भी आपको लिखना है। और ये इंडिविजुअल पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। एक एक लाइन बीच में छोड़ देना है, टॉपिक का हेडिंग का नाम लिखना है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द रस एंड द दोष। फिर भले आप टेबुलर फॉर्म में उसको लिख दो कि मधुर रस इंक्रीजेस डिक्रीजेस, मधुर रस इंक्रीजेस कौन कौन सा दोष, मधुर रस डिक्रीजेस कौन कौन सा दोष। सिमिलरली रसों का पादप, रिलेशन ऑफ रस विथ पंचमहाभूत, तो मधुर रस के कौन से पंचमहाभूत से रिलेशन है, कौन से पंचमहाभूतों को बढ़ाता है, कौन से पंचमहाभूतों को कम करता है। अब जैसे लवण रस है तो लवण रस अगर अग्नि और जल भूयिष्ठ है तो लवण रस अग्नि और जल को बढ़ा देगा, साथ में बाकी महाभूतों को कम कर देगा। तो भले कम करने वाला चीज उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन लवण रस के अति सेवन से जो महाभूत बढ़ते हैं उसके अपोजिट कम होते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको स्कंद लिखने हैं। स्कंद में आपको वो द्रव्य लिखने हैं जो, कुछ द्रव्य आप फूड से ले सकते हो, कुछ द्रव्य आप औषधि से ले सकते हो। तो जब आप श्लोक देखोगे या जब आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें वो श्लोक में कुछ द्रव्य आपको फूड के मिल जाएंगे और कुछ, जैसे लवण रस है तो लवण रस में जितने भी 5 प्रकार के लवण है, पंच लवण जो सेंधव, सवर्चल, कृष्ण, बिड और सामुद्र, ये 5 लवण जो है ये आपको फूड में मिल जाएंगे। और ये लेड जो है, सीसा, या क्षार जो है, सर्जक क्षार और यवक क्षार, ये आपको दवाई वाले लवण रस के स्कंद के गण है। तो उसमें भी आप लवण स्कंद ऊपर टॉपिक लिख के नीचे आप ये लिख सकते हो कि आहारीय द्रव्य और औषधीय द्रव्य। आहारीय द्रव्य में आहार में उपयोग होने वाले द्रव्य आप लिख सकते हैं, और औषधीय द्रव्य में औषध में यूज होने वाले द्रव्य आप लिख सकते हैं। ऑफकोर्स लवण में ज्यादा औषधि द्रव्य है नहीं, कारण ये है कि लवण जो है वो एज एन औषध ही यूज होता है, और लवण रस जो है वो मतलब सिर्फ लवणों में पाया जाता है, बाकी किसी चीजों में पाया नहीं जाता। अनुरस जो एक कंसेप्ट जानवी ने ये किया था, अनुरस इज डेफिनेटली understood by the actions, but anurus is also aftertaste. Anurus is also aftertaste. तो रस इज द डोमिनेंट टेस्ट एंड अनुरस इज द आफ्टर टेस्ट। अब डोमिनेंट टेस्ट और आफ्टर टेस्ट में फर्क क्या है, तो वी डोंट नीड टू वेट। सभी अनुरस जो है वो जब तक हम, मतलब जब तक हमको उसका प्रभाव आने तक रुकने का जरूरत नहीं है। जैसे हम आंवला खाते हैं, तो आंवला खाते हैं तो सबसे पहले खट्टा लगता है, और उसके बाद जब आप पानी पीते हो तो पानी मीठा लगता है। तो मधुर रस जो है वो आंवले का अनुरस है, क्योंकि वो शुरुआत में नहीं लगता। जब आंवले का खट्टा रस पूरी तरह से शरीर में या जबान पे टेस्ट लग जाता है, तो उसके बाद आने वाला जो टेस्ट है वो अनुरस है। अनुरस का डेफिनेटली प्रभाव से भी जाना जाता है, शी इज नॉट रॉन्ग, बट आई एम ओनली प्लेसिंग वन मोर पॉइंट that anurus is also a rus which shows after the main taste has gone away. Anurus is also a rus which also shows up when the main taste has gone away. कुछ कुछ अभी जैसे आंवले में कषाय रस भी है, तो कषाय रस जो है वो आंवले का खट्टा रस का टेस्ट जाने के बाद गले में और मुंह के पिछले पार्ट में कषाय रस, मतलब एक ऐसे अलग तरह से उसका फीलिंग आता रहता है। तो दैट इज व्हाट इज अनुरस। ठीक है, तो वी हैव 2 minutes 40
30 seconds लेफ्ट. किसी का अगर अटेंडेंस नहीं लगा है या फिर उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अटेंडेंस वाला पेज नहीं आया है, तो यू कैन पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल मार्क योर अटेंडेंस. ठीक है. इसके अलावा अगर किसी और को ये रस में कोई डाउट है तो मुझे या जो जिन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया है उनको पूछ सकते हैं. बिकॉज देयर इज नो लिंक इन द चैट बॉक्स, शिवम ठक्कर जरूर से मेरे को ये भेजेगा कि सर रोल नंबर 57, वो मुझे पता है. तो हर बार शिवम का अटेंडेंस लगा हुआ होता है, फिर भी वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है. तो एनीवे, तो वी स्टॉप हियर एंड अगले वीक, नेक्स्ट वीक वी विल हैव लेक्चर्स. सो देयर विल बी नो सेमिनार्स, वी विल रिवाइज. और उसके अगले वीक वी विल हैव सेमिनार्स अगेन. आज या कल में मैं नेक्स्ट वीक वाले लोगों का सेमिनार का लिस्ट जो है वो सेमिनार के कंटेंट में पोस्ट करूंगा. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इनिशियली बता देना, लास्ट मोमेंट पे मत बताना. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. आई विल बी पोस्टिंग दीज प्रेजेंटेशंस इन द कंटेंट पार्ट. तो कंटेंट के फोल्डर में आपको ये प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगे. और इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू प्रिपेयर नोट्स ऑफ रस, क्योंकि रस, एक रस तो 100% आने वाला है. एक रस 100% आने वाला है. तो सभी रसों के अगर आपने मैंने जिस तरह से बताया उस हिसाब से आप अगर ये लिख देते हो, नोट्स बना देते हो, तो दैट विल हेल्प यू टेक अप दिस अध्याय वेरी इजीली. क्योंकि लास्ट में आपको 30 अध्याय पढ़ने हैं, अभी तो 30 पढ़ने हैं, बट जब चरक पढ़ोगे तो यू हैव टू रीड 30 अध्याय सूत्र स्थान के, उसके बाद 8 अध्याय निदान स्थान के. तो बहुत सारे अध्याय एक टाइम पे पढ़ने हैं. तो संहिता के पढ़ के इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू मेक नोट्स. सो थैंक यू so much for attending the lecture and have a very nice day.